Very good morning to everyone. We will be doing this sum in front of your screen. Second sum in the internal reconstruction chapter. What is internal reconstruction? Internal reconstruction is a situation in a company which arises when the company faces losses from few years and mm, to write off or wash off the losses, company undergoes a internal reconstruction situation which should be agreed by all the stakeholders of the company along with the prior permission from the judiciary. And this situation, internal reconstruction situation, arises in a company only once in its lifetime. Now with this, let us start with our sum. Mrs. Unwell Limited has incurred heavy losses since past few years. So this Unwell Limited is incurring losses since past few years, and this is the situation when internal reconstruction is done. The company adopted a scheme of reconstruction on the basis of the following summarized balance sheet. As Unwell Limited was incurring losses since past few years, the company decided to adopt a scheme of internal reconstruction, and the balance sheet is given below. Liability side, we have equity share capital 1,60,000. How many number of shares are there? 1,60,000 shares of rupees 10 each, fully paid 16 lakh. See, for your reference, I have written here that liabilities means we assume it to be credit balance and asset means we assume it to be debit balance. So equity shares, we have 1,60,000 shares of rupees 10 each, which is coming to 16 lakh. Then we have preference share capital 4,000, 10%. What is this 10%? This 10% is the dividend which is fixed in preference shares. 10% shares of rupees 100 each, fully paid 4 lakhs. Then we have 10% debenture. What is this 10% in debenture? It is the rate of interest which is fixed, that is 10%, which is coming to 20 lakhs. And the interest is accrued, means the interest is outstanding on debentures. Now when the company is facing losses since few years, it becomes difficult to pay the interest on time. So unlike dividend, interest gets accumulated. So interest has got accumulated, जमा होने लग गया है, एंड जमा होके कितना इंटरेस्ट हो गया है जो पे नहीं हुआ, हाउ मच इंटरेस्ट इज आउटस्टैंडिंग ऑन डिबेंचर्स, इट इज 2 lakh. So interest accrued and due on debenture, that is interest outstanding to be, that is interest to be paid in on debentures is 2 lakh, creditors is 8 lakh, bills payable is 1 lakh, outstanding audit fees is 1 lakh, total of the liability side is 52 lakh. Now let us discuss the asset side. In the asset side, which we assume to be a debit balance, land and building is of the value 12,20,000. Furniture is of the value 4 lakh, computer 6 lakh, data 6 lakh, stock 80,000, bills receivable 5 lakh, cash at bank 3,60,000, share issue expenses 40,000, profit and loss account debit balance is 14 lakh. Now, what is this profit and loss account debit balance? Can anyone tell me what is profit and loss account debit balance? Profit and loss account generally is shown in the liability side.
Profit and loss account is generally shown in the liability side of the balance sheet, but here we can see the profit and loss in the asset side, and asset is a debit balance. So this profit and loss account which comes in the asset side is also assumed to have a debit balance. Now what does this imply? This profit and loss account implies a loss. Now, because this company is making losses from few years, its profit and loss account is having loss balance. It is having net loss, and the amount is 14 lakhs. And we did not even see any reserves in this liability side. See, in the liability side, there is no reserves because जितने भी reserves होंगे वो initial years में used up हो गया होगा. When the company is making losses, then जितना भी company का say what are reserves? Reserves are the savings of the company. Now, when the company is making losses, obviously the reserves, the savings will be used up first. So यहाँ पे देखा जाए तो यहाँ पे reserves भी नहीं है, and loss is there in the asset side 14 lakh, and the total of the asset side is also 52 lakhs. Now let us read what is given. The following scheme of reconstruction was approved by the court. So what is the scheme of reconstruction? Which is approved by the court is given below. 10% preference shares to be reduced by rupees 20 per share. One preference share is of how much rupees? One preference share is of 100 rupees. One preference share is of 100 rupees. So the preference share to be reduced by rupees 20 per share. मतलब जो 100 rupees का share है अब 20 rupees से कम होगा, means share preference share अभी 80 rupees का हो जाएगा. You understand what is reduced by? Reduced by मतलब इतने से कम होगा. What they have told that 10% preference shares to be reduced by rupees 20 per share, means preference shares will be reduced by कितने से कम होगा? 20 rupees से value कम कर देंगे. Preference shareholders are ready to make a sacrifice. उनका जो ओल्ड शेयर्स था वो 100 रुपीज का था. नाउ दे आर रेडी टू टेक अ रिडक्शन, मेक रिड्यूस दैट शेयर. तो वो 20 रुपीज का 20 रुपीज कम करने के लिए रेडी है. तो उनको न्यू शेयर जो इशू होगा दैट विल बी ऑफ 80 रुपीज. जो हम क्या हो रहा है 100 रुपीज से 20 रुपीज वैल्यू कम, मतलब जिन हम टेल मी इसी तरह प्रॉफिट और लॉस. पहले अगर कंपनी बंद होता तो प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को 100 रुपीज पर शेयर पे करना पड़ता. अभी प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स ने क्या बोला, हमारा शेयर 20 का जो फेस वैल्यू है वो 20 रुपीज से कम कर दो. मीन्स नाउ प्रेफरेंस शेयर्स आर ऑफ 80 रुपीज. अब क्या होगा, कंपनी को पर शेयर में 100 रुपीज पे करने की ज़रूरत नहीं है. दे में पे 80 रुपीज ओनली. सो कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से इट इज़ अ प्रॉफिट ऑफ 20 रुपीज. सेम वे इक्विटी, हमें ऑलवेज इन दिस चैप्टर think from the point of view of the company. So equity shares are reduced by rupees 5 per share. How much was the value of equity share? 10 rupees. The value of equity share was 10 rupees. Now how much is it getting reduced by? It is getting reduced by rupees 5. मेरा 10 रुपीज़ का शेयर 5 रुपीज़ से वैल्यू कम होगा तो 5 रुपीज़ का हो जाएगा 10 माइनस 5 इस 5. तो नया शेयर जो क्रिएट होगा इट विल बी ऑफ 5 रुपीज़. तो इक्विटी शेयर होल्डर्स को जहाँ पे 10 रुपीज़ पर शेयर पे करना था, अभी अकॉर्डिंग टू न्यू शेयर ओनली 5 रुपीज़ हैज़ टू बी पेड. इफ See, next, debenture holders agreed to settle their claim fully. तो debenture holders ने बोला हमें fully, वो लोग रेडी है अपना क्लेम सेटल करने के लिए. एंड व्हाट दे आर आस्किंग फॉर, क्लेम बाय इशू ऑफ new 11% debentures of rupees 14 lakh.
सी 10% डिबेंचर था पहले 20 लाख का. नाउ दे से द डिबेंचर होल्डर से that instead of 10% डिबेंचर्स वी वांट न्यू 11% डिबेंचर्स. हमें 10% डिबेंचर्स के बदले में क्या इशू करो? 10% डिबेंचर्स के बदले में 11% डिबेंचर्स दे दो. So we will have to cancel this 10% debentures, and in place of this 10% debentures, company will issue 11% debentures of how much amount? 14 lakh. Earlier जो debentures थे वो 20 lakhs के थे. Now the new debentures will be of 14 lakhs. Now tell me, is it a profit or a loss for the company? जहाँ पे कंपनी को पहले 20 lakhs पे करना था, now the new liability जो new debentures है 11% debentures, ये सिर्फ 14 lakhs का है, means 6 lakh कम पे करना पड़ेगा. It is a profit for the company. And one more thing, debenture holders also agree to forego 50% of their interest, the payment of the remaining 50% of interest to be made immediately. So how much is the accrued interest? 2 lakh. तो उसमें से debenture holder 50% forego करने को ready है. Now what do you mean by forego? Forego means to waive, is to forget. मतलब जैसे कि हम हमारा 50% इंटरेस्ट भूल जाने के लिए रेडी है, तुम लोग हमें मत पे करो, बट रिमेनिंग 50% हैज टू बी पेड इमीडिएटली. जैसे वी आर रेडी टू फॉरगो, रेडी टू सैक्रिफाइस 50% ऑफ आवर इंटरेस्ट. मीन्स 2 लाख में 1 लाख भूलने के लिए रेडी है, माफ करने के लिए रेडी है. वी आर रेडी टू फॉरगो 50% of our interest, but the condition is remaining 50% has to be paid immediately. Now tell me, is it a profit or a loss? 2 lakh is the accrued interest जिसमें डिबेंचर होल्डर्स आर रेडी टू फॉरगो 50%, आर रेडी टू फॉरगेट 50% ऑफ देयर इंटरेस्ट विद द कंडीशन कि रिमेनिंग 50% ऑफ इंटरेस्ट टू बी paid immediately. Tell me, what is it? Yes, it is a profit. It is a profit for the company because 2 lakh में 50% नहीं पे करना पड़ेगा, and only remaining 50% has to be paid. See, I again repeat, 2 लाख में 50% नहीं पे कर रहे, वो प्रॉफिट है बिकॉज इंटरेस्ट पे करना कंपलसरी है, एंड हमको डिबेंचर होल्डर्स आर रेडी टू फॉरगो 50%. सो 1 लाख का हमें यहाँ पे प्रॉफिट होगा, एंड रिमेनिंग 50% दैट इज रिमेनिंग 1 lakh वी विल पे इमीडिएटली. नेक्स्ट व्हाट इज गिवन? कंप्यूटर was to be written down. Computer was to be written down by 40,000. Computer was of 6 lakh. Now written down means value कम करना, depreciate करना. क्या करना है? कंप्यूटर 6 लाख का है. नाउ व्हाट वी विल डू? वी विल राइट डाउन 40,000. हम क्या करेंगे? कंप्यूटर का 40,000 वैल्यू कम करेंगे. नाउ टेल मी, is it a profit or a loss? Is it a profit or a loss? कंप्यूटर का वैल्यू 40,000 कम हो जाएगा. असेट का वैल्यू कम होना, इज इट अ प्रॉफिट और अ लॉस? इट इज अ लॉस, करेक्ट. कंप्यूटर जो है उसका वैल्यू हम 40,000 से कम करने वाले हैं, तो इट विल बी अ लॉस. So later, what is the next point given? Land and building and furniture to be appreciated by 10%. Now tell me, appreciate means क्या? वैल्यू इंक्रीज होना. तो लैंड एंड बिल्डिंग का वैल्यू एंड फर्नीचर का वैल्यू, 2 assets, लैंड एंड बिल्डिंग एंड फर्नीचर, both of the assets value has increased by 10%. So
profit है. When the value of the asset increases, it is a profit. And then stock to be appreciated by rupees 60,000, even the value of stock is increasing, so that is also a profit. They say fictitious asset and debit balance of profit and loss account to be written off. तो fictitious asset कौन सा है यहाँ पे? Share issue expense is a fictitious asset. Fictitious asset means what? It is, we assume it to be a asset, but it is not a asset in real sense. So here शेयर इशू एक्सपेंस, शेयर इशू एक्सपेंस इस क्या हो रहा है? शेयर इशू करते वक्त होने वाला एक्सपेंस, इट इज अ फिक्टिशियस असेट, तो उसको भी कैंसिल करना है. एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जो डेबिट बैलेंस है, दोनों को राइट ऑफ करने बोला है. मींस बोथ ऑफ देम हैज टू बी कैंसल्ड. देन दे से पूरा स्कीम ऑफ रिकंस्ट्रक्शन जो हमने किया, उसके लिए वी हैड टू पे 50,000. जो हमने कोर्ट के परमिशन के साथ जो इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन का स्कीम पास किया, उसके लिए 50,000 का खर्चा आया. द कॉस्ट ऑफ रिकंस्ट्रक्शन वाज ₹50,000. So that 50,000, what we will do, cost of reconstruction was 50,000. So this is a, tell me, loss है ना, expense है, because हमें 50,000 का खर्चा देना पड़ रहा है for internal reconstruction. So it will be a loss and cash is going out. खर्चा होगा तो money will go out 50,000. And then they say 75% of the creditors agreed to forgo their claims by 10%. So ये जब हम लोग सम करेंगे तभी भी देखेंगे. 75% of the creditors, पहले देखो total creditor is 8 lakh, उसका 75% निकालो. टोटल क्रेडिटर इज 8 लाख, उसका 75% ऑफ क्रेडिटर्स, टोटल क्रेडिटर 100% क्रेडिटर इज 8 लाख, उसका 75% कितना होता है? इट इज 75% ऑफ 8 लाख इज 6 लाख. तो 6 लाख का 10% क्रेडिटर्स आर रेडी टू फॉरगो देयर क्लेम. मतलब 6 लाख में 10% अमाउंट हमें नहीं पे करना, बिकॉज दे आर सेइंग डोंट पे, वी आर रेडी टू फॉरगेट अवर मनी. सो वो 10%, 6 लाख का 10% इज 60,000. तो वो 60,000 का कंपनी को फायदा हुआ, बिकॉज उनको पे नहीं करना वो पैसा. तो क्रेडिटर्स कितना कम होगा? 60,000 कम होगा. और क्या होगा? कंपनी को प्रॉफिट होगा, बिकॉज दे विल नॉट पे दिस अमाउंट. सो द एंट्री विल बी क्रेडिटर लाइबिलिटी. क्रेडिट बैलेंस मत, क्रेडिटर इज द लाइबिलिटी एंड लाइबिलिटी ऐसा क्रेडिट बैलेंस. आप पे नहीं करेंगे तो कम हो जाएगा. तो कम मतलब क्रेडिट का ऑपोजिट डेबिट. एंड प्रॉफिट होगा तो वी क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन. यहाँ पे प्रॉफिट होने दो, लॉस होने दो, हम कैपिटल रिडक्शन अकाउंट को इफेक्ट देते हैं. सो हम क्या करेंगे? प्रॉफिट होगा तो कैपिटल रिडक्शन को क्रेडिट करेंगे. तो एंट्री होगा क्रेडिटर अकाउंट डेबिट 60,000 टू कैपिटल रिडक्शन. प्रॉफिट हो रहा है 60,000. Other entries also we will discuss when we will be doing the sum. Now lastly they say reduce debtors by 70,000. So हम क्या करेंगे? debtors को 70,000 से वैल्यू कम करेंगे. So debtor कितना है? 6 लाख है. कितना वैल्यू कम हो रहा है? 70,000 कम हो रहा है. तो जितना वैल्यू कम होगा उतना असेट का वैल्यू कम होना. टेल मी, प्रॉफिट और लॉस, असेट का वैल्यू कम होना, इसी का प्रॉफिट और अ लॉस. हमारा असेट कम हो रहा है तो इट इज अ लॉस. करेक्ट? असेट का वैल्यू कम होना is a loss. Now what have they asked us to prepare? You are required to pass journal entries to record the above transactions and prepare the capital reduction account in the books of Unwell Limited. So what we have to do? We have to prepare journal entries in the books of
What is the name? Unwell Limited. In the books of Messrs. Unwell Limited. So let us write Messrs. Unwell Limited. So now let us prepare the journal. यहाँ पे सीरियल नंबर लिखना पड़ेगा, पर्टिकुलर LF डेबिट क्रेडिट. सो डेट, लेट अस एडजस्ट द कॉलम्स. डेट के लिए, LF के लिए तो हमें हार्डली वी वांट, सो लेट अस राइट डेट, particulars, LF, debit rupees and credit rupees. So let us start our first entry. फर्स्ट एंट्री में प्रेफरेंस शेयर्स का वैल्यू रिड्यूस हुआ है. सॉरी, डेट नहीं दिया है ना, तो वी विल राइट सीरियल नंबर. सो फर्स्ट सीरियल नंबर क्या है? फर्स्ट सीरियल नंबर में कौन सा एंट्री आएगा? 10% preference shares to be reduced by ₹20 per share. See the value of preference share. Preference share 100 rupees का है. 4000 प्रेफरेंस शेयर्स है 100 रुपीज का. अब हम 100 रुपीज का प्रेफरेंस शेयर्स को कैंसल करेंगे और कितना रिड्यूस करेंगे शेयर का वैल्यू? बाय 20 रुपीज. जहाँ पे 100 रुपीज का शेयर था, अब हम नया शेयर क्रिएट करेंगे 80 रुपीज का. कैसे पता चला? वी आर reducing the, see how much are we reducing the face value of the share? By 20 rupees. First, earlier it was 100 rupees share. Up the share is reduced by 20%. By, ऐसा नहीं बोला है, reduce ₹2.20. reduce 2 मतलब इतना हो गया शेयर का वैल्यू. reduce by मतलब इतने से कम हुआ. getting my point? reduced by मतलब इतने से वैल्यू कम हुआ. रेड्यूस होना मतलब कम होना. बाई मतलब इतने से रेड्यूस हुआ. रेड्यूस टू मतलब इतना कम हुआ. रेड्यूस टू का मीनिंग होता है इतना कम होना, और रेड्यूस बाई मतलब इतने से कम हुआ. व्हाई आई एम स्ट्रेचिंग सो मच ऑन दिस, यू नो, बिकॉज मेनी स्टूडेंट्स गेट कंफ्यूज्ड इन reduce टू एंड reduce by. इसलिए मैं इतना स्ट्रेस करके बार बार बोल रही हूँ कि reduce टू मतलब इतने इतना हो गया, कम होके इतना हो गया. एंड reduce by मतलब इतने से कम हुआ. increase by मतलब इतने से बढ़ गया. increase टू मतलब बढ़कर इतना हो गया. ये डिफरेंस है बाई एंड टू में. बाई मतलब इतने से कम हुआ या ज्यादा हुआ, और रेड्यूस टू मतलब इतना हो, कम होकर इतना वैल्यू हुआ. इंक्रीज टू मतलब बढ़कर इतना वैल्यू हो गया. ये तुम लोग को ध्यान में रखना है. वैसे तो इट इज वेरी इजी कंसेप्ट, बट आई नो मेजॉरिटी अगर स्टूडेंट जो वर्नाक्युलर मीडियम से आते हैं तो उनको ये थोड़ा समझने में डिफिकल्टी होती है. इवन इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट्स को भी होता है. ऐसा नहीं कि इंग्लिश मीडियम से है तो उनको यहाँ पे कंफ्यूजन नहीं हो सकता. बट आई हैव experienced this many times, yet that students get confused with reduce to and reduce by. reduce to मतलब reduce का मीनिंग होता है कम होना, increase का मीनिंग होता है बढ़ जाना, एंड टू मतलब इतने से कम होना या इतने से ज्यादा होना, और बाई मतलब सॉरी रेड्यूस टू मतलब क्या होता है? इतना हो जाना. मतलब सॉरी, एक एग्जांपल देती हूँ. प्रेफरेंस शेयर बॉस, यहाँ पे अगर ऐसा होता, प्रेफरेंस शेयर टू बी reduce to ₹20 पर शेयर. reduce टू का मीनिंग होता है कि नया वैल्यू शेयर का है 20 रुपया. व्हाट इज द न्यू वैल्यू ऑफ द शेयर? 20 रुपीज. अब यहाँ पे reduce टू नहीं लिखा है, यहाँ पे क्या लिखा है? reduced by. reduce by का मीनिंग क्या होता है? इतने से वैल्यू कम हो गया. मतलब पहला शेयर 100 रुपीज का था, अभी 20 रुपीज वैल्यू कम हो गया. पहले शेयर कितने का था? 100 रुपीज का, अभी कितना हो गया? 20 रुपीज वैल्यू कम हो गया. तो यहाँ पे
जो ओल्ड शेयर था वो कैंसल हो जाता है. ओल्ड शेयर, शेयर मीन्स लाइबिलिटी, शेयर मीन्स व्हाट, लाइबिलिटी, लाइबिलिटी मीन्स क्रेडिट बैलेंस. तो यहाँ पे क्या हो रहा है, ओल्ड शेयर, लाइबिलिटी मीन्स क्रेडिट बैलेंस, बट कम होता है लाइबिलिटी, तो हम डेबिट करते हैं. हाउ मच इज द प्रेफरेंस शेयर परसेंटेज, इट इज 10%. सो 10% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल कम हो रहा है तो डेबिट किया. अकाउंट डेबिट, कितना शेयर्स है, 4000 हमने अभी देखा, और जो एक शेयर था वो 100 रुपीज का था. सो दिस बिकम्स हाउ मच, this becomes how much, 4000 into 100, this becomes 4 lakhs. अभी क्या हो रहा है, इसके बदले में नया शेयर क्रिएट हो रहा है. अब लाइबिलिटी मीन्स क्रेडिट बैलेंस, कुछ जब भी कुछ क्रिएट होता है लाइबिलिटी या इंक्रीज होता है तो वी क्रेडिट इट, कम होता है तो क्रेडिट का उल्टा डेबिट. तो यहाँ पे क्या क्रिएट हो रहा है, क्रिएट हो रहा है 10% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट, 4000 शेयर्स, नया वाला 20 रुपीज से कम होके 80 रुपीज का हो रहा है. तो यहाँ पे वी विल राइट 3 लाख, मल्टीप्लाई करो 4000 इंटू 80, 3,20,000, मतलब जहाँ पे कंपनी को 4 लाख पे करना था. अभी न्यू शेयर इज ऑफ ओनली 80 रुपीज, ओल्ड शेयर वॉज ऑफ 100 रुपीज, बट न्यू शेयर इज ऑफ ओनली 80 रुपीज. तो यहाँ पे क्या हुआ, कंपनी को प्रॉफिट हुआ. प्रॉफिट होता है तो क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन. एंड ये चैप्टर में जब भी कंपनी को प्रॉफिट होने दो या लॉस होने दो, हम कौन से अकाउंट को इफेक्ट देंगे, वी विल बी गिविंग इफेक्ट टू कैपिटल रिडक्शन अकाउंट. तो कितने का प्रॉफिट है, मल्टीप्लाई 4000 into 20, it is coming to 80,000. So here being preference shares reduced, being preference shares, what is the narration, being preference share reduced to 80 or reduced by ₹20 per share. दिस इज द नरेशन. सेम रिपीट किया जो ऊपर दिया है, बीइंग प्रेफरेंस शेयर रिड्यूस्ड बाय ₹20 पर शेयर. So let us now go to the next one. Let us go to the next entry. इक्विटी शेयर भी reduced हो गया है by ₹5 पर शेयर. तो ओल्ड इक्विटी शेयर का वैल्यू कितना था, इक्विटी शेयर का पहला वैल्यू था 10 रुपीज, अब 5 रुपीज से रिड्यूस हो गया है. तो 10 माइनस 5 कितना, व्हाट इज द न्यू वैल्यू, सी रेड्यूस बाई मतलब इतने से कम हुआ. पहला इट वाज अर्लियर इक्विटी शेयर वाज ऑफ 10 रुपीज, नाउ इट इज रेड्यूस बाई 5 रुपीज. सो 10 में से 10 माइनस 5 करो, व्हाट इज द न्यू वैल्यू, 10 माइनस 5, द न्यू वैल्यू इज 5. सो यहाँ पे भी हम सेम वी विल पास द एंट्री, क्या होगा, ओल्ड, ओल्ड. अभी इक्विटी शेयर कैपिटल ऑल्सो इज अ लाइबिलिटी, कम हो रहा है, ओल्ड शेयर्स कैंसल हो रहा है, कम हो रहा है. तो इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, हाउ मेनी नंबर ऑफ शेयर, 1,60,000 शेयर्स था, एक शेयर 10 रुपीज का था. तो कितना हो जाता है, कितना हो जाता है, 1,60,000 इंटू 10, इट कम्स टू 16 लाख. अब जो नया शेयर है वो कितने का रहेगा, न्यू शेयर इज ऑफ 5 रुपीज. सो न्यू शेयर क्रिएट हो रहा है, न्यू इक्विटी शेयर कैपिटल कितने का है, 1,60,000 इंटू 5 कितना होता है ये, मल्टीप्लाई करो 8 lakhs. एंड यहाँ पे 16 लाख का शेयर
या 10 रुपीज का शेयर 5 रुपीज का हो गया, तो कंपनी को अभी सिर्फ 5 रुपीज ही पे करना पड़ेगा अगर कंपनी बंद होता है तो यहाँ पे जहाँ पे पहले 10 रुपीज था, अभी सिर्फ 5 रुपीज पे करना पड़ेगा बिकॉज द फेस वैल्यू ऑफ द शेयर हैज रिड्यूस्ड। तो ये जो हमें फायदा हुआ, कितने का प्रॉफिट हुआ, प्रॉफिट होने दो लॉस होने दो, वी विल बी गिविंग इफेक्ट टू कैपिटल रिडक्शन अकाउंट ओनली 8 lakhs। सो इसका नरेशन क्या रहेगा, व्हाट विल बी द नरेशन, बीइंग इक्विटी shares reduced by ₹5 per share। So इसके बाद we will have to go to the next entry। Let us see what is the next entry। नेक्स्ट एंट्री में डिबेंचर होल्डर जो है दे एग्री टू सेटल देयर क्लेम, मीन्स वो लोग क्या लेने के लिए रेडी है, उनका क्या है डिबेंचर्स का, डिबेंचर का 10% डिबेंचर्स था 20 लाख का, 10% डिबेंचर्स 20 लाख का। नाउ द डिबेंचर होल्डर्स आर सेइंग दे आर एग्री टू सेटल देयर क्लेम। तो ये जो 10% डिबेंचर्स का 20 लाख है, दे आर रेडी टू सेटल, बट उनको बदले में सेटलमेंट में व्हाट दे वांट न्यू 11% डिबेंचर फॉर ओल्ड 10% डिबेंचर जो 20 लाख का था, उसके बदले में डिबेंचर होल्डर्स आर सेटलिंग फॉर न्यू 11% डिबेंचर्स ऑफ ₹14 lakhs। समझा, जहां पे 20 lakhs पे करना था 10% डिबेंचर्स, अब 10% डिबेंचर होल्डर्स बोलते हैं कि हमें 11% डिबेंचर्स दे दो, मतलब जहाँ पे 10% इंटरेस्ट मिलता था पहले, नाउडे से हमें 11% इंटरेस्ट मिलने वाला डिबेंचर्स दो, मतलब वी वांट 11% डिबेंचर्स। एंड जो 20 lakhs का था उसके बदले में उनको 14 lakhs का डिबेंचर्स चल जाएगा। दे आर डूइंग अ सैक्रिफाइस। डिबेंचर होल्डर्स क्या सैक्रिफाइस करते हैं कि हमें 10% डिबेंचर्स के बदले में 11% डिबेंचर्स दे दो, बट हमारा 20 lakhs का अब हम सेटल हो रहे 14 lakhs में। सो टेल मी, इज इट अ प्रॉफिट और अ लॉस फॉर द कंपनी, इज इट अ प्रॉफिट और अ लॉस फॉर द कंपनी? कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचो तो जो ओल्ड डिबेंचर्स है या ओल्ड न्यू नहीं लिखोगे तो भी चलेगा, 10% डिबेंचर्स, ये डेबिट में क्यों लिखा, बिकॉज ये डिबेंचर्स मीन्स लाइबिलिटी, लाइबिलिटी मीन्स क्रेडिट बैलेंस, लाइबिलिटी मीन्स क्रेडिट बैलेंस, गेटिंग माय पॉइंट, लाइबिलिटी मीन्स क्रेडिट बैलेंस, बट ये 10% डिबेंचर्स कैंसल हो रहे हैं मतलब कम हो रहे हैं, तो क्रेडिट का ऑपोजिट कम होना मतलब क्रेडिट का ऑपोजिट डेबिट में लिखा। कितने का है ये 10% डिबेंचर्स, ये 20 lakhs का था, इसके बदले में हमें क्या मिल रहा है, इसके बदले में हमें मिल रहा है 2 न्यू 11% डिबेंचर्स, 11% डिबेंचर्स, ये कितने का है ऑफ 14 lakhs। एंड तो क्रेडिट में देखो डिफरेंस आ रहा है 6 लाख का, तो व्हाट इज दैट, दैट इज द प्रॉफिट। और प्रॉफिट होता है तो हम कौन से अकाउंट को इफेक्ट देते हैं, कैपिटल रिडक्शन अकाउंट, दैट इज द बैलेंस। व्हाट इज द बैलेंस, 20 lakh minus 14 lakh, इट इज नथिंग बट 6 लाख का प्रॉफिट हुआ। तो यहाँ पे लिखेंगे हम बीइंग डिबेंचर होल्डर सेटल्ड, बीइंग डिबेंचर होल्डर्स सेटल्ड, दिस इज ऑल्सो डन। बट क्वेश्चन वो अभी भी कंप्लीट नहीं हुआ है, वो क्वेश्चन में आगे दे ऑल्सो से दैट दे एग्री टू फॉरगो 50% ऑफ देयर इंटरेस्ट। डिबेंचर होल्डर का इंटरेस्ट कितना है, इंटरेस्ट कितना आउटस्टैंडिंग है 2 लाख, तो वो 2 लाख में क्रेडिटर वो 2 लाख में डिबेंचर होल्डर से दे आर रेडी टू फॉरगो 50%, 2 लाख का 50% इज 1 लाख, मीन्स डिबेंचर होल्डर से दैट हम 1 लाख भूलने के लिए रेडी है, बट
payment of the remaining 50% of interest to be made immediately. जो हमारा ये देखो इंटरेस्ट एक्रूड एंड ड्यू ऑन डिबेंचर 2 लाख, इसमें 50% दे आर रेडी टू सैक्रिफाइस, बट रिमेनिंग 50% इमीडिएटली पे करो। तो पे करेंगे तो पैसा बाहर जाएगा और प्रॉफिट भी हो रहा है 1 लाख का, बट ये लाइबिलिटी जो है सेटल कर देंगे तो ये कम हो जाएगा। लाइबिलिटी मतलब क्रेडिट बैलेंस, सेटल करेंगे पे करेंगे तो कम हो जाएगा। लाइबिलिटी मीन्स क्रेडिट बैलेंस, कम होता है तो डेबिट करते हैं, कम होता है तो क्या करते हैं, डेबिट करते हैं। तो ये पूरा मैं कॉपी कर देती हूँ क्योंकि नीचे लिखना पड़ेगा इसको। ये कम हो रहा है, ये जो है ये हम इसको अभी पे करेंगे तो ये कम हो जाएगा। लाइबिलिटी मीन्स क्रेडिट बैलेंस, पे करेंगे तो कम होगा, कम होगा तो क्रेडिट का ऑपोजिट डेबिट करना पड़ेगा। दिस इज ऑफ हाउ मच, 2 lakhs। अब कम हो रहा है तो हम क्या करने वाले, 50% पे करने वाले। पे करते तो व्हाट गोस आउट, कैश बैंक अकाउंट। कितना पे करने वाले हैं, कितना पे करने वाले, 2 लाख का 50% पे करने वाले। सो इट इज हाउ मच, 1 लाख पे कर रहे। एंड तो रिमेनिंग 50% वो लोग फॉरगो कर रहे। फॉरगो करेंगे तो कंपनी को क्या होगा, प्रॉफिट होगा। इस पे नहीं करना है, ये इंटरेस्ट पे करना कंपलसरी है, बट ये लोग डिबेंचर होल्डर ने बोला मत पे करो। सो कंपनी को क्या हो गया, प्रॉफिट हो गया 1 लाख का। तो प्रॉफिट होता है तो कैपिटल रिडक्शन को बीइंग इंटरेस्ट ड्यू ऑन डिबेंचर्स सेटल्ड, करेक्ट, ये भी हो गया। अब इसके बाद लेट अस सी व्हाट नेक्स्ट क्या है, 3। इसके बाद दे से कंप्यूटर वाज टू बी रिटर्न डाउन बाय 40,000। तो जो जो वैल्यू कम हो रहा है ना वो सब में लॉस है। कंप्यूटर का वैल्यू कम हो रहा है तो इट इज अ लॉस ऑफ 40,000, रिटर्न डाउन बाय 40,000। अभी हमें लॉस चाहिए, कितना लॉस हो, अगर कंप्यूटर का वैल्यू 40,000 से कम होगा तो 40,000 का लॉस होगा, करेक्ट। कंप्यूटर जो था मेरे पास वो 6 लाख का था। कंप्यूटर जो मेरे पास था दैट वाज ऑफ 6 लाख, बट उसका 40,000 वैल्यू कम हो रहा है, मीन्स मुझे 40,000 का लॉस हुआ। ये एप्रिसिएशन का बाद में देखते हैं। और यहाँ पे हम लोग फिक्टिशियस एसेट और डेबिट बैलेंस ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को भी राइट ऑफ करने वाले। मुझे बताओ, असेट को राइट ऑफ करेंगे, असेट को कैंसिल करेंगे तो वो लॉस है क्या प्रॉफिट है? भले वो फिक्टिशियस असेट भी रहने दो, बट असेट को राइट ऑफ करेंगे, कैंसल करेंगे तो वो प्रॉफिट है कि लॉस है? इट इज अ लॉस। मतलब यहाँ पे कंप्यूटर का लॉस हो गया, फिक्टिशियस असेट का लॉस हो गया, करेक्ट। और डेटर्स, डेटर्स का वैल्यू भी 70,000 से कम हो रहा है तो ये भी लॉस है। क्या क्या लॉसेस है, सब लॉसेस को एक साथ लिखते हैं। लेट अस पास अ कंबाइन एंट्री। यू अंडरस्टैंड ना, कंबाइन एंट्री, किस किस में लॉस हो रहा है सब एक ही साथ में लिख लेते हैं। अलग अलग लिखेंगे तो बहुत सारी एंट्रीज हो जाएगी। तो कहाँ कहाँ पे लॉस हो रहा है, ये कंप्यूटर का वैल्यू कम हो गया वो लॉस है। फिक्टिशियस असेट और डेबिट बैलेंस ऑफ पीएनएल अकाउंट को राइट ऑफ करेंगे, असेट कम हो रहा है वो लॉस है। डिबेंचर को भी रिड्यूस कर रहे हैं, डिबेंचर भी असेट है वो भी कम हो रहा है 70,000 से, वो भी लॉस है। डिबेंचर सॉरी डेटर, हाँ मैं गलती से ऐसे डिबेंचर डेटर्स का वैल्यू कम हो रहा है 70,000 से तो वो भी लॉस है। सो डेटर 6 लाख का है, वैल्यू कितना कम हो रहा है 70,000, तो वैल्यू जितना कम होना इस लॉस। अब लॉस होता है तो टेल मी कैपिटल रिडक्शन को क्या करते, डेबिट या क्रेडिट? लॉस होता है तो डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। लॉस होता है तो हम किसको डेबिट करेंगे,
कैपिटल रिडक्शन अकाउंट को। प्रॉफिट होता है तो किसको क्रेडिट करेंगे? कैपिटल रिडक्शन अकाउंट को। गेटिंग माय पॉइंट? प्रॉफिट होगा तो भी कैपिटल रिडक्शन को इफेक्ट देना है, लॉस होगा तो भी कैपिटल रिडक्शन को इफेक्ट देना है। नाउ असेट कम होगा, लॉस होगा तो असेट कम होगा। असेट इज अ डेबिट बैलेंस, समझ में रखो, असेट इज अ डेबिट बैलेंस। कम होता है तो क्या करते हैं? असेट इज अ डेबिट बैलेंस, कम होता है तो क्रेडिट करते हैं। असेट, सारे असेट्स डेबिट बैलेंस है, हाँ, सारे असेट्स डेबिट बैलेंस है। कम होगा तो क्रेडिट करेंगे। तो कंप्यूटर कम हो रहा है 40,000, सो यहाँ पे लिखेंगे टू कंप्यूटर कितना कम हो रहा है? 40,000। इसके बाद कौन सा असेट कम हो रहा है? हम किसको राइट ऑफ कर रहे हैं? फिक्टिशियस असेट एंड डेबिट बैलेंस। फिक्टिशियस असेट है शेयर इशू एक्सपेंस 40,000, पीएनएल अकाउंट भी कम हो रहा है 14 लाख। तो यहाँ पे लिखेंगे टू share issue expenses. We will write here share issue expense and we will write here to profit and loss account. Which balance? Debit balance. So what was the amount? Share issue expense 40,000. This is 14 lakh. PNL is 14 लाख। इसके बाद क्या कम हो रहा है? इसके बाद डेटर 70,000 से कम हो रहा है। सो वी विल राइट हियर टू डेटर्स, असेट है, वैल्यू कम हो रहा है 70,000। सो ऐड करो सबका, कितना वैल्यू डेबिट में आएगा? how much it will come? 40 plus 40 plus 70 plus 14 lakh. How much is the total coming? 15 lakh 50,000. Is it correct? 14 lakh plus 40 plus 40 plus 70 is coming to 15 lakh 70,000 being assets and losses. लॉसेस क्या है? ये पीएनएल अकाउंट इज अ लॉस रिटर्न ऑफ, being assets and losses written off. Now we will go to the next entry. कुछ असेट का वैल्यू इंक्रीज भी हो रहा है तो प्रॉफिट भी हो रहा है। किसका वैल्यू इंक्रीज हो रहा है? लैंड एंड बिल्डिंग, फर्नीचर और स्टॉक। लैंड एंड बिल्डिंग एंड फर्नीचर का 10% इंक्रीज हो रहा है। सो लैंड एंड बिल्डिंग 12,20,000 का 10% कितना होता है? 12,20,000 का 10% वैल्यू इंक्रीज हो रहा है। सो इट इज हाउ मच वैल्यू? इट इज इक्वल टू हाउ मच? 1,22,000। करेक्ट ना? यहीं पे कैलकुलेट कर रही हूँ मैं। फर्नीचर का भी 10% वैल्यू इंक्रीज हो रहा है तो 4 लाख का 10% इज हाउ मच? इज इक्वल टू 40,000। 1,22,000 एंड 40,000 10% वैल्यू इंक्रीज हो रहा है। ये सिर्फ तुम लोग के अंडरस्टैंडिंग के लिए यहाँ पे लिखा था मैंने। 1,22,000 एंड 40,000 और स्टॉक 60,000 वैल्यू अप्रिशिएट हो रहा है। सो अप्रिशिएट हो रहा है तो इतना ही अप्रिसिएशन है। लेट अस राइट, जब असेट का वैल्यू अप्रिशिएट होता है या असेट का वैल्यू इंक्रीज होता है तो असेट इज डेबिट बैलेंस, इंक्रीज होगा तो और डेबिट करेंगे। तो यहाँ पे क्या है? लैंड एंड बिल्डिंग अकाउंट, लैंड एंड बिल्डिंग अकाउंट डेबिट, लैंड एंड बिल्डिंग अकाउंट डेबिट 10% इंक्रीज हो गया 1,22,000। देन वी हैव फर्नीचर, इसका वैल्यू भी इंक्रीज हो रहा है। असेट है, डेबिट बैलेंस, वैल्यू इंक्रीज होगा तो और डेबिट करेंगे, 10% इंक्रीज हुआ। इसके बाद एक और असेट का वैल्यू इंक्रीज हुआ है, इट इज स्टॉक अकाउंट डेबिट
कितना वैल्यू इंक्रीज हुआ, एक बार फिर से चेक करते हैं। 60,000 अप्रिशिएटेड बाय 60,000, तो ये सब असेट्स का वैल्यू इंक्रीज हुआ, तो हमें कितना प्रॉफिट हुआ। प्रॉफिट होता है तो कौन से अकाउंट को क्रेडिट करते हैं, कैपिटल रिडक्शन। लॉस हुआ तो कैपिटल रिडक्शन को डेबिट, प्रॉफिट हुआ तो कैपिटल रिडक्शन को क्रेडिट। सो हाउ मच इज इट कमिंग, is coming to this much, 2,22,000 being assets appreciated, वैल्यू ऑफ एसेट अप्रिशिएटेड लिखोगे तो भी चलेगा, या बीइंग असेट्स अप्रिशिएटेड। नेक्स्ट एंट्री क्या होगा, लेट अस सी। ये हो गया कंप्यूटर का स्टॉक, हो गया फिक्टिशियस एसेट, हो गया। अभी दो ही एंट्रीज बाकी है फिलहाल, यहाँ पे ट्रांजैक्शंस बाकी है। वन इज कॉस्ट ऑफ रिकंस्ट्रक्शन, मींस अब जब हमने स्कीम ऑफ इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन किया तो वी इनकर द कॉस्ट, मीन्स हमें लॉस हो गया। लॉस होता है तो कैपिटल रिडक्शन अकाउंट डेबिट, कितने का लॉस हुआ, कितने का कंस्ट्रक्शन का एक्सपेंस पे किया, व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ रिकंस्ट्रक्शन, मींस इट्स अ लॉस। कॉस्ट ऑफ रिकंस्ट्रक्शन पे करना मींस इट्स अ लॉस। लॉस मतलब कैपिटल रिडक्शन को डेबिट करो, और व्हाट इज गोइंग आउट, कैश इज गोइंग आउट। सो कैपिटल रिडक्शन अकाउंट डेबिट, कितना लॉस हुआ, 50,000 का। एंड कॉस्ट मतलब हमने इतना पैसा पे किया, कैश बैंक अकाउंट, हाउ मच, 50,000। इधर नरेशन में लिखेंगे बीइंग कॉस्ट ऑफ रिकंस्ट्रक्शन सेटल्ड या पेड, दिस इज ऑल्सो डन। इसके बाद क्रेडिटर्स है, लास्ट एंट्री वॉज क्रेडिटर्स। 75% of the creditors agreed to forgo their claims by 10%. तो how much is the total of creditors? It is 8 lakh. 8 lakhs का 75% ऑफ क्रेडिटर्स, 8 लाख का 75% होता है 6 लाख। वो लोग अपना 10% क्लेम माफ करने के लिए रेडी है, तो यहाँ पे creditors is equal to how much, 8 lakhs, but 8 lakhs का 75% which is equal to 6 lakh are ready। 6 लाख का जो दिस 6 लाख क्रेडिट का जो क्रेडिटर है वो उसका 10% जो लोग क्रेडिटर्स है दे आर रेडी टू फॉरगो देयर क्लेम्स। वो लोग बोलते हैं हमें इतना पैसा नहीं चाहिए। नहीं चाहिए मतलब लाइबिलिटी कम हो रहा है, लाइबिलिटी क्रेडिट बैलेंस कम होगा तो हम डेबिट करते हैं, तो कम हो रहा है, कितना कम हो रहा है, 60,000। और यहाँ पे कम होता है तो क्या करेंगे, क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट 60,000 टू क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट 60,000 टू क्रेडिटर्स कम होना, लाइबिलिटी कम होना क्या है, प्रॉफिट है। प्रॉफिट मतलब किसको इफेक्ट देंगे, कैपिटल रिडक्शन अकाउंट 60,000 being creditors waived their claim, being creditors waived या forgoed their claims, creditors forgo their claims। इतने लोगों ने बोला इतना पैसा नहीं चाहिए, तो ये भी हो गया। अभी क्वेश्चन में सारे एंट्रीज हो गए, लेकिन यहाँ पे एक और अकाउंट प्रिपेयर करने बोला है, प्रिपेयर कैपिटल रिडक्शन अकाउंट। सो कैपिटल रिडक्शन अकाउंट कैसे प्रिपेयर करेंगे, जैसे हम लेक्चर अकाउंट प्रिपेयर करते हैं वैसे कैपिटल रिडक्शन अकाउंट प्रिपेयर करेंगे। नाउ हम लोग पहले एंट्री से चेक करेंगे किधर
डेबिट में है कैपिटल रिडक्शन और किधर क्रेडिट में. लेट अस गो टू द फर्स्ट एंट्री. कैपिटल रिडक्शन इज इन द क्रेडिट 80,000, बट लेजर में क्रेडिट में है तो कैपिटल रिडक्शन अकाउंट में कैपिटल रिडक्शन नहीं आएगा. हम नेम ऑफ द ऑपोजिट अकाउंट लिखेंगे. सो 10%. तो क्रेडिट में व्हाट वी विल डू, क्रेडिट में जाएंगे, लिखेंगे बाय नेम ऑफ द ऑपोजिट अकाउंट 10% प्रेफरेंस शेयर्स. बाय 10% ना, 10% क्रेडिट साइड में कैपिटल रिडक्शन अकाउंट के capital reduction is in the credit side, name of the opposite account, and what is the amount of capital reduction. capital reduction का amount है 80,000. तो यहाँ पे लिखेंगे 80,000. इसके बाद we will go to the next entry. second entry में again capital reduction is in the credit side 8 lakhs. नेम ऑफ द ऑपोजिट अकाउंट है इक्विटी शेयर कैपिटल. तो इधर लिखेंगे हम बाय, क्रेडिट में है तो क्रेडिट साइड में बाय इक्विटी शेयर कैपिटल. इट इज हाउ मच, 8 lakhs. इसके बाद वी विल गो टू द थर्ड एंट्री. अगेन कैपिटल रिडक्शन क्रेडिट साइड में 6 लाख. नेम ऑफ द ऑपोजिट अकाउंट 10% डिबेंचर. तो यहाँ पे लिखेंगे बाय 10% डिबेंचर्स. हाउ मच इज द अमाउंट, 6 लाख. इसके बाद फोर्थ एंट्री में कैपिटल रिडक्शन अगेन क्रेडिट साइड में नेम ऑफ द ऑपोजिट अकाउंट इंटरेस्ट एक्रूड और कैपिटल रिडक्शन का अमाउंट है 1 लाख. कैपिटल रिडक्शन का अमाउंट है 1 लाख. सो वी विल राइट हियर बाय इंटरेस्ट एक्रूड. बाय इंटरेस्ट एक्रूड कितना है, 1 लाख. इसके बाद सी हियर फिफ्थ वाला एंट्री में ये सब चीज हमें लिखना पड़ेगा एक एक करके. कैपिटल रिडक्शन अकाउंट डेबिट में है, सो नेम ऑफ द ऑपोजिट अकाउंट सबका हम लोग लिख देंगे इधर. सब लिख दिया. एंड उसका अमाउंट्स क्या है, 40,000, 40,000, 14 लाख एंड 70,000. ये लिख देंगे. डेबिट में है कैपिटल रिडक्शन तो डेबिट में लिखेंगे एंड नेम ऑफ द ऑपोजिट अकाउंट्स. तो इसके बाद विच इज द नेक्स्ट एंट्री. नेक्स्ट एंट्री में कैपिटल रिडक्शन क्रेडिट में है तो क्या क्या है, लैंड एंड बिल्डिंग. व्हाट इज द लैंड एंड बिल्डिंग. तो लिखेंगे क्रेडिट में लैंड एंड बिल्डिंग. फिर बाय फर्नीचर. फिर क्या है, बाय स्टॉक. नेम ऑफ द, हम लोग हमेशा नेम ऑफ द ऑपोजिट अकाउंट्स लिखते हैं. 1,22,000, 40,000 एंड 60,000. इसके बाद कैपिटल रिडक्शन किधर है, कैपिटल रिडक्शन इज इन द डेबिट साइड. तो अगेन डेबिट में लिखेंगे टू नेम ऑफ द ऑपोजिट अकाउंट कैश बैंक. Cash bank, how much it is? It is 50,000. And last entry again our capital reduction is in the credit side. Name of the opposite account is creditors, 60,000. इसको टैली करो. कैपिटल रिडक्शन अकाउंट का जो भी बैलेंस है वो हमेशा किधर जाता है, कैपिटल रिजर्व में. तो हाउ मच इज द बैलेंस कमिंग, 18,62,000. 18,62,000. Name of the two capital reserve.
हाउ मच इज द बैलेंस, बैलेंस करो, बैलेंस इज कमिंग टू 2,62,000. सो कैपिटल रिजर्व का कितना बैलेंस आया, 2,62,000. क्या किया, क्रेडिट साइड का टोटल निकाला, डेबिट साइड का टोटल निकाला, देखा कौन सा साइड का वैल्यू ज्यादा है. सो क्रेडिट का वैल्यू ज्यादा है तो दोनों साइड में लिखा एंड बैलेंस किया, वी गॉट 2,62,000. सो हियर लास्ट एंट्री इज फॉर द कैपिटल रिजर्व. तो कैपिटल रिडक्शन का जो बैलेंस था, तो कैपिटल रिडक्शन को खाली करके उसका सब बैलेंस हमने नया रिजर्व कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर किया. सो कैपिटल रिडक्शन डेबिट में है तो कैपिटल रिडक्शन अकाउंट के डेबिट साइड में है तो हम कैपिटल रिडक्शन अकाउंट डेबिट बोलेंगे. टू नेम ऑफ द ऑपोजिट अकाउंट कैपिटल रिजर्व और अमाउंट कितना है, 2,62,000, 2,62,000. और इसका नरेशन है बीइंग बैलेंस ट्रांसफर, बीइंग बैलेंस ऑफ कैपिटल, बीइंग कैपिटल बैलेंस ऑफ कैपिटल रिडक्शन ट्रांसफर्ड. With this sum is finally done. लास्ट में हमने क्या किया, कैपिटल रिडक्शन अकाउंट का बैलेंस कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर किया. थैंक यू वेरी मच एवरीवन.